Assalamu alaikum participants. Can you hear me? Yes, sir. Okay, so let us start the session. So, good evening, everyone, and welcome to today's workshop on federated learning for industrial predictive maintenance, that is, privacy, robustness, and explainability. So, I'm truly excited to see such enthusiastic participants from students, researchers, engineers, data professionals, and technology learners joining us today from different backgrounds. स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ पार्टिसिपेशन कम है बट we'll record the session eventually and distribute this video so that everybody can watch it later on. So before we begin, let me ask you a simple question. Imagine multiple factories around the world are collecting machine data. तो ये जो डेटा है ये सेंसर से एवरी सेकेंड जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है. That data can help predict machine failures before they happen. That is, saving companies millions of dollars and preserving dangerous breakdowns. So, but here is the challenge. क्या हो अगर ये फैक्ट्रीज जो हैं वो आपस में डेटा शेयर करना ना चाहें एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो this is the exactly where federated learning becomes powerful. Instead of sending sensitive industrial data to one central server, federated learning allows organizations to train AI models collaboratively while keeping their raw data private and secure. So, in simple words, the data stays at the factory, but the learning is shared. So, today's workshop is designed to explain these concepts in practical and easy to understand manner. Even if you are new to federated learning, you can learn from this workshop. So, there are several things that we will be exploring today. I'm not going to describe them point by point now. But one important thing I want to mention is that this workshop is not only about the theory. We will also connect these ideas to a real research framework called RPL PDM, which combines robustness, privacy, explainability, and federated learning for the predictive maintenance systems. So our goal today is very simple. Make the advanced AI security and privacy concept understandable, practical and relevant real world industrial environments. ठीक है, तो इसके अंदर आप ये practical knowledge आपको मिलेगी. And I encourage everyone to stay engaged through the session. Feel free to note down your questions, and we'll try to address them during or after after the session. So now, without further delay, let us begin our journey into the fascinating world of federated learning and intelligent industrial systems. Over to you, Bilal. You can continue, and please, first of all, introduce yourself. Thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. I am Bilal और मैं MS डेटा साइंस में enrolled हूँ. और अगर मैं अपने थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूँ तो आई एम करेंटली वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन CBRE. ये एक US बेस्ड कंपनी है जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इससे पहले मैं एज अ सीनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट करीम से एसोसिएटेड था और उससे पहले मैं के इलेक्ट्रिक में एज अ डिप्टी मैनेजर डेटा एनालिटिक्स काम करता रहा हूँ. ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम कोशिश करेंगे इस सेशन को हम इंटरेक्टिव रखें. ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी विजिबल है. ओके सर. अच्छा, सर ने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया इस बारे में. मैं भी थोड़ा इसमें बैकग्राउंड ऐड करना चाहूँगा कि
हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, और ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो कि इंडस्ट्री आजकल फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी इस पे काफ़ी काम हो रहा है। और इसमें हम जो एक फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे हैं वो रिपील पीडीएम है। हम उसे आगे जाके हम एक्सप्लेन भी मैं करूंगा और हम लोग उसे डिटेल में भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। हम पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो इंडस्ट्री में मेन 3 टाइप की मेंटेनेंस होती है, 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। और क्योंकि मुझे आइडिया है कि सबका इतना इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड होगा नहीं, तो हम इसे बिल्कुल लेमैन टर्म्स में लेके चलते हैं। अब आप एज्यूम कर सकते हैं इंडस्ट्री की किसी मशीन की जगह आप एज्यूम कर लें किसी व्हीकल को, जैसे आपके पास कोई कार हो या आपके पास कोई बाइक हो। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, वो अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो आप लोग जैसे ट्यूनिंग कराने जाते हैं अपनी कार की या अपनी बाइक की, तो वो एक तरह से हमारे पास शेड्यूल मेंटेनेंस कहलाती है। यानी कि जो कंपनी, जिस कंपनी की भी आपके पास व्हीकल है, कार है, उसने कहा है कि इतने टाइम पीरियड के बाद या इतने किलोमीटर्स के बाद आपने जाके इसकी ट्यूनिंग करानी है, इसका ऑयल फिल्टर चेंज करना है, एयर फिल्टर चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है। तो सिमिलर काम होता है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर भी। हमारे पास मेंटेनेंस वो वाली कहलाती है शेड्यूल मेंटेनेंस, यानी कोई उसमें इशू नहीं आया होता मशीनरी के अंदर, लेकिन हम फिर भी मेंटेनेंस करते हैं क्योंकि वो रिकमेंडेड है बाय ओईएम। ओईएम का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसने वो बनाया है। जैसे मैं कार के अंदर बात करूँ तो सुजुकी ने बनाई है या होंडा ने बनाई है, तो उनकी एक कैटलॉग बुक होती है, उसके अंदर लिखा होता है ये। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस हो गई शेड्यूल मेंटेनेंस। देन हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ मेंटेनेंस, जो क्या है करेक्टिव मेंटेनेंस। अब जैसे नाम से जाहिर है करेक्टिव, यानी कोई चीज़ हम करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई मसला आ गया है वो हम सही कर रहे हैं। तो फिर हम एग्जांपल लेते हैं आपकी कार की, कि जैसे कोई कार के अंदर इशू आ जाए, वो इंजन के अंदर कोई मसला हो या क्लच प्लेट के अंदर कोई इशू हो, तो आप जाएंगे मैकेनिक के पास सही कराने के लिए। सिमिलर हमारे पास भी होता है कि हम कलेक्टिव मेंटेनेंस में जाते हैं, लेकिन उसे सही कराते हैं जाके। हम खुद सही करते हैं या फिर जो भी टेक्नीशियन होता है वो उसे सही करता है। लेकिन इसमें एक आप इशू देखेंगे, इशू ये है कि आपके पास डाउन टाइम आ गया। डाउन टाइम का मतलब ये है कि वो मशीन ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब वो ऑपरेट नहीं कर रही, तो आपके पास एक फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, वो मशीन बंद पड़ी हुई है। यानी जो भी वो काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल अगर वो डाइंग मशीन है, किसी टेक्सटाइल में लगी हुई है, तो वो कोई ना कोई काम कर रही होगी आगे, तो वो काम रुक गया। तो वो एक कलेक्टिव मेंटेनेंस की वजह से आपके पास क्या हुआ कि एक डाउन टाइम आ गया, फाइनेंशियल लॉस कंपनी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, वो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हमारे पास इस तरह से होता है कि हम किसी भी फॉल्ट आने से पहले हम उसे प्रिडिक्ट कर लें। अब वो हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? हम उसे इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी मशीन का डेटा आ रहा होता है, हम उसके पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न आ रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो एकदम कोई भी फॉल्ट डेवलप नहीं होता, उसके पीछे एक टाइम पीरियड होता है। तो हम उसे उस टाइम पीरियड में अगर कैच कर लें और उस टाइम पे हम उसके अंदर वो काम कर लें, तो वो काम बड़ा भी नहीं होता, और हम उससे जो ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आजकल इंडस्ट्री में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अब मैं इसमें एक रियल आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जब मैं बिल्कुल फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था और मैंने भी जब नया-नया काम करना शुरू किया इंडस्ट्री के अंदर, तो एक विंड फार्म था जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था घारो और झिंपीर के एरिया में, सिंध, इंटीरियर सिंध में। तो वहाँ पे उनकी विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल थी, और एक विंड टर्बाइन वहाँ पे कुछ अरसे बाद बंद हो गई। यानी वो बंद हो गई, डाउन टाइम आ गया, उसका कोई फॉल्ट आ गया। जब उसे चेक किया गया तो पता चला कि उसका मेन बेरिंग डैमेज है। अब मेन बेरिंग आप ये समझिए एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, वो डैमेज हो गया उसके अंदर, और वो पाकिस्तान में बनता नहीं है, तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो जिसकी वजह से एक आपके पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो आया, साथ में आपकी प्रोडक्शन भी बंद हो गई। तो एक वो विंड टर्बाइन तकरीबन 3000 से 4000 घरों को बिजली प्रोवाइड करती थी। तो एक आपके पास नेपरा के पास भी एक डाउनफॉल शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक मसला सिर्फ एक एक कंपनी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पूरे इंटरकनेक्टेड है आम आदमी तक भी, यानी हम तक भी, जो कॉमन मैन है वहां तक भी इंटरकनेक्टेड है। और अ, चलें ये हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया इसमें कि एक और विंड फार्म पे सिमिलर काइंड का इशू आया था। लेकिन वो विंड फार्म अगर हमें बता देता कि उनके पास तरह का इशू आया हुआ है, तो यहाँ पे वो लोग कोई ना कोई प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करके उस फॉल्ट को इतना बढ़ने से रोक सकते थे। लेकिन यहाँ मसला वही आता है कि डेटा डेटा तो था, लेकिन कोई उसे एनालाइज करने वाला था नहीं।
और अगर हमारे पास डेटा एनालाइज होता भी तो हम सेंट्रलाइज मॉडल पे करते तो वो भी हम नहीं कर सकते, उसके अंदर भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो यानी कि डेटा हमारे पास है लेकिन हम उसे यूज नहीं करना कर पा रहे क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं। ये काफी बड़ा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके अंदर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एक हमारा आउटलाइन है कि हम इस तरह लेके चलेंगे आज के सेशन को। और ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, एक केस स्टडी है जो ग्लोबली हुई है सीमेंस की तरफ से, कि ऑटोमोटिव प्लांट के अंदर डाउन टाइम कितना कॉस्ट करता है पर आवर, $2.3 मिलियन पर आवर कॉस्ट करता है। इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट डेटा है और ये सिर्फ ग्लोबली नहीं है, पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं कि यानी हमें ये तो समझ आ गया हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि हमें प्रिडिक्ट करके दे कि आगे फॉल्ट आने वाला है। अब इस मॉडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक सेंट्रल कोई मॉडल हो जहाँ पे जैसे हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 क्लाइंट हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और क्लाइंट एन। हम इसे क्लाइंट 3 कंसिडर कर लेते हैं। इन सबके पास अपना अपना डेटा अवेलेबल है और ये सारा डेटा शेयर कर रहे हैं। एक मॉडल हमने डेवलप किया जो कि सेंट्रल मॉडल है, यानी कि 3 फैक्ट्रीज के लिए हमने एक सेंट्रल मॉडल डेवलप किया और वहाँ पे सारा डेटा डंप हो रहा है, वो मॉडल ट्रेन हो रहा है, देन उसके बाद ट्रेनिंग टेस्टिंग ये सारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इंडस्ट्री के अंदर रियल वर्ल्ड में, यानी कि हम थ्योरेटिकल तो देखें तो ये बड़ा अच्छा है कि सेंट्रल हमारे पास मॉडल है, वहाँ ट्रेन हो रहा है, सबका फायदा है इसके अंदर, क्योंकि कोई एक ऐसा फॉल्ट जो कि एक इंडस्ट्री में आया है सेकंड पे भी आ सकता है तो उसके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ इशू ये है कि डेटा प्राइवेसी की वजह से वो डेटा शेयर नहीं हो सकता। कभी कभी ओईएम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगर मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल भी दूं तो इससे आपका रेवेन्यू भी फोरकास्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई विंड टरबाइन है, वो बताए कि मैंने इतनी पावर जनरेट की, वो वाला डेटा इसके सेंट्रल सर्वर पे गया और वहां से आप पावर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करके, यानी जितने का यूनिट है वहां से आप निकाल सकते हैं इस कंपनी का कितना रेवेन्यू है। तो ये बहुत एक प्राइवेसी कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से सेंट्रल मॉडल कभी भी यूज नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है फेडरेटेड लर्निंग का। और इसका सर ने भी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, मैं भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करूंगा। तो फेडरेटेड लर्निंग के अंदर ये होता है हमारे पास कि हर फैक्ट्री का अपना अपना एक मॉडल होता है, वो उसे खुद ट्रेन करता है। और उसके बाद जैसे हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास मेन सर्वर है जो कि आप पर्पल कलर में देख सकते हैं, ये ग्लोबल मॉडल है यहाँ पे। और देन नीचे फैक्ट्री है, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी के पास एक इंडिविजुअल मॉडल है, सबके अपने अपने। ये यहाँ पे मॉडल ट्रेन करेंगे लेकिन डेटा सेंड नहीं करेंगे सर्वर को, मेन सर्वर पे, बल्कि क्या जाएगा यहाँ से वेट्स जाएंगे आगे। इन्होंने यहाँ पे जैसे इसमें देख सकते हैं आप ट्रेन किया, देन इन्होंने वेट्स आगे सर्वर के पास भेजे। अब वेट्स जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज तो हम काफी हद तक हमारी हल हो गई कि डेटा शेयर नहीं हो रहा, वेट्स शेयर हो रहे हैं। इसमें भी एक इशू है, वो भी हम आगे देखेंगे कि वेट्स के अंदर भी किस तरह प्राइवेसी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि वेट शेयर हो रहे हैं तो डेटा शेयर नहीं हो रहा, तो प्राइवेसी का मसला हल हो गया हमारा। और इसके बाद जब ये मेन सर्वर पे जाता है तो मेन सर्वर पे क्या एग्रीगेशन का कोई ना कोई फंक्शन लगता है। अभी हम फिलहाल के लिए सिंपल समझ लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि वेटेड एवरेज हो रहा है वहाँ पे। वेटेड एवरेज होगा नहीं, हम देखेंगे आगे क्या होता है इसमें, लेकिन वेटेड एवरेज हम एज्यूम करके चलते हैं अभी फिलहाल। वेटेड एवरेज वहाँ पे हुआ, देन इसके बाद फिर वेट्स नीचे आए फैक्ट्री लेवल के ऊपर। और फिर ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारे पास ये कन्वर्जेंस ना आ जाए। तो इस तरह हमारे पास फेडरेटेड लर्निंग वर्क करती है। लेकिन इस फेडरेटेड लर्निंग के अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तभी ये इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वरना हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पहला चैलेंज जो हमारे पास यहाँ पे हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ एक समरी के तौर पे लिखा हुआ है, ओवरव्यू के तौर पे। तो हमारे पास 4 मेजर चैलेंजेस हैं। फर्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये हुआ, हमारे पास इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेबिलिटी एआई का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें ना। तो इशू ये है कि फॉर एग्जांपल एक मॉडल है मेरे पास, मॉडल एक जस्ट लाइक ब्लैक बॉक्स है। उसने हमने इनपुट दिया उसे, अंदर ब्लैक बॉक्स है, उसमें कुछ हो रहा है, फिर हमारे पास आउटपुट आया। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हाँ फॉल्ट आएगा, आप मशीन बंद कर दो।
लेकिन इंडस्ट्री इस तरह काम नहीं करती कि मैं बोलूँ कि भाई हाँ बंद कर दो, तो उसे पीछे जस्टिफिकेशन देनी होती है, कोई रीज़न देना होता है हमें, स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होता है कि आपने बंद करना है तो इसकी वजह ये है, इस वजह से बंद करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डेटा के अंदर वाइब्रेशन का पैरामीटर है, वो एक्सीड हो रहा है नॉर्मल लिमिट से, या टेम्परेचर नॉर्मल लिमिट से एक्सीड हो रहा है, या प्रेशर के अंदर ये हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया ना, आपको रीज़न देना होता है उसके अंदर। ऐसा आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब मशीन बंद होगी तो वो जाके ऑपरेटर देखेगा भी उसे कि इस इक्विपमेंट में मसला है, तो जाके उस पे काम करेंगे ना। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम यहाँ पे हर मॉडल बताएगा कि ये एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपकी में फॉल्ट आ सकता है आपकी इक्विपमेंट के अंदर। लेकिन इशू ये है कि फैक्ट्री ए फॉर एग्जांपल कहे कि वाइब्रेशन की वजह से फॉल्ट आ सकता है, फैक्ट्री बी कहे प्रेशर की वजह से, फैक्ट्री से किसी और पैरामीटर की वजह से कहे, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ये अलाइन नहीं है। तो हाँ, ये एक रीज़न है कि आपको यहाँ पे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी कि ये एक्सप्लेनेशन अलाइन हो। हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम करेंगे हम फ्रेमवर्क इसमें प्रपोज करेंगे, वो है FEAM। इसके थ्रू हम ये सॉल्व करेंगे, ये भी हम आगे देखते हैं। देन इसके बाद सेकंड इशू आता है एडवर्सरियल अटैक्स का। अच्छा, एडवर्सरियल अटैक्स के अंदर इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, लेकिन कोई एक फैक्ट्री का डेटा करप्ट हो गया। करप्ट हो गया मतलब कोई अटैक हो गया इसमें। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, असल में होता है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसके अंदर भी अ, पाकिस्तान में काफ़ी विंड पावर प्लांट्स पे इंडिया की तरफ से अटैक्स हुए थे। तो आपके जो रेगुलेटर है, जो कि नेपरा, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसके अंदर कुछ चेक्स ऐसे लगाने हैं। वो तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम अगर मॉडल की बात करें तो अगर इस तरह के कोई अटैक्स हो जाएँ, तो आपका जो पूरा ग्लोबल मॉडल है वही करप्ट हो जाएगा। तो आपको एक इसके लिए टैकल करने के लिए एक मैकेनिज़्म हम प्रपोज़ करेंगे इसके लिए भी। देन इसके बाद आता है डेटा हेटेरोजेनिटी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इक्विपमेंट है 3 फैक्ट्रीज़ में लगी हुई है। मैं बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर लगी हुई है 3 फैक्ट्रीज़ के अंदर। एक फैक्ट्री में मोटर लगी हुई है इंडोर, उसका टेम्परेचर अलग होगा, यानी एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, ऑपरेटिंग कंडीशन डिफरेंट है। इसी तरह एक का लगा हुआ है आउटडोर, उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन डिफरेंट है। तो ऑपरेटिंग कंडीशन डिफरेंट है तो डेटा आपका क्या है, होमोजीनियस नहीं है, आपका डेटा डिफरेंट कंडीशंस में ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन को भी केटर करना है कि डेटा सबका एक जैसा होता ही नहीं है। और लास्ट है हमारे पास प्राइवेसी लीकेज। प्राइवेसी लीकेज में ये कि जैसे अभी हमने आप कहेंगे हमने स्टार्ट में देखा कि भाई प्राइवेसी का मसला तो हल हो गया, हम तो वेट शेयर कर रहे हैं। हम वेट शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात है, हम डेटा शेयर नहीं कर रहे, लेकिन वेट से भी डेटा लीकेज हो जाती है। तो हमारा टारगेट इसमें ये है कि हम उस लीकेज को भी हम सॉल्व करें, वो प्राइवेसी के अंदर अगर कोई, क्योंकि हमें बिल्कुल फूल प्रूफ सॉल्यूशन देना है इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए हम इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो ये 4 इसके अंदर फेडरेटेड लर्निंग में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मेरा थीसिस का एक तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यही है कि हम इन 4 मेजर एरियाज़ पे फोकस करेंगे और इसकी हम एक इंडस्ट्री में सॉल्यूशन प्रपोज़ करेंगे। इस स्लाइड में आप देख भी सकते हैं, हम पहले बात करें एक्सप्लेनेबिलिटी की। एक्सप्लेनेबिलिटी हमें कंसिस्टेंट चाहिए अक्रॉस साइट्स। देन रोबस्टनेस के अंदर हमें एडवर्सरल क्लाइंट या मैलिशियस क्लाइंट्स जो होते हैं तो उसे भी टैकल करना है। देन साइट स्पेसिफिक अडेप्टेशन होनी चाहिए। और लास्ट हमारे पास है इसमें कि डेटा लोकल तो रहता है, लेकिन फिर भी वेट्स के थ्रू अगर, या वेट्स या ग्रेडियंट्स के थ्रू अगर कुछ लीकेज हो तो हमें उस पे भी काम करना है। इससे पहले जो लिटरेचर रिव्यू मैंने इसमें किया था, जो पहले काम हुआ हुआ है, इस फील्ड में काम हुआ हुआ है, लेकिन इशू ये है कि वो चारों एरियाज को केटर नहीं करता, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट उस लेवल पे हो नहीं पाया। कि अगर हम बात करें कि एक ने सेंट्रलाइज एक्सप्लेनेबल एआई के ऊपर काम किया, लेकिन उसके अपने इश्यूज थे, जैसे कि एक्सप्लेनेबिलिटी का मसला था या एडवर्सर रोबस्टनेस थी, उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया या उसकी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है रिपील पीडीएम, ये इन सब चीज़ों को केटर करेगा। अच्छा, हम देख भी लेते हैं इसका मतलब क्या है। सो रिपील पीडीएम स्टैंड फॉर, यहाँ पे हम आर स्टैंड फॉर रोबस्ट। अब रोबस्ट के अंदर हमारा मकसद यही है कि हम जो भी मैलिशियस अटैक्स वगैरह होते हैं, हमें उससे रोबस्ट होगा हमारा सिस्टम।
देन पर्सनलाइज इज बेसिकली एफएल तो है लेकिन वो पर्सनलाइज एफएल होगा हमारे पास। इसमें हम दो मैकेनिज्म एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारे पास एक्सप्लेनेबिलिटी अलाइंड। एक्सप्लेनेबिलिटी अलाइंड के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि हर साइट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट हो ग्लोबल मॉडल के साथ, ताकि तो इसके लिए हमने फ्रेमवर्क जो प्रपोज किया वो FEAM है, फेडरेटेड एक्सप्लेनेशन अलाइनमेंट मैकेनिज्म। एंड देन L इज फॉर फेडरेटेड लर्निंग और PDM इज फॉर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर इससे रिलेटेड यहाँ तक आप में से किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। चले, मेरे ख्याल से शायद किसी का कोई सवाल नहीं है, तो सवाल ना हो तो फिर दो रीज़न होते हैं, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा या सब कुछ समझ आ रहा होता है। तो मैं एज्यूम अच्छी बात ही करूँगा, समझ आ रहा होगा सबको। ओके, तो ये हमारी 4 कंट्रीब्यूशंस हैं, हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। ये एक सबसे पहले सिस्टम आर्किटेक्चर है जो कि हमने डिज़ाइन किया। इसमें वही है कि हमारे पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं और इनके अपने अपने मॉडल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास वेट्स और शेप वेक्टर जाएंगे एग्रीगेशन सर्वर पे, और देन यही हमने जो पीछे 4 चीज़ डिस्कस की हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। इस तरह हमारा एक मॉडल का आर्किटेक्चर इस तरह वर्क करता है। अब एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक तो एक समरी है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैंने जो डेटा सेट इसमें कंसिडर किया है, पहले हम वो देख लेते हैं। ये एक है बेस लाइन डेटा सेट है। इसमें दो रीज़न हैं कि हमने रियल वर्ल्ड क्यों पिक नहीं किया। एक तो प्राइवेसी कंस्ट्रेंट होते हैं, उसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि इस डेटा सेट के ऊपर पहले कुछ रिसर्च पेपर्स में काम हुआ था, तो हम इसको इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें नहीं हुई भी, किसी में एक एक के अंदर ईडीए पे और सॉरी इसका फेडरल लर्निंग पे काम हुआ है, तो हम इसकी रिजल्ट्स को वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारे पास एक बेयरिंग है। बेयरिंग आप ये समझे किसी मोटर के अंदर लगा हुआ है बेयरिंग, और वहाँ से हमारे पास एक्सीलरोमीटर होता है एक, जो बेसिकली एक सेंसर है। वो सेंसर डेटा को रिकॉर्ड करता है, और डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा होता है वो एज अ वाइब्रेशन सिग्नल रिकॉर्ड होता है। अब जैसे हमारे पास कुछ सेंसर होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, वो आपको रीडिंग देगा एक कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, या प्रेशर है वो कहेगा इतने PSI प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन के अंदर कोई यूनिट इस तरह का होता नहीं, ये कोई नंबर भी नहीं होता इसमें। ये हमारे पास एक वाइब्रेशन सिग्नल आता है। इस सिग्नल से हमें डेटा बनाना होता है फिर। तो इस सिग्नल को रिकॉर्ड कर लिया एक्सीलरोमीटर जो कि सेंसर है, और इससे हमने फिर विंडोइंग सेगमेंटेशन करके डेटा क्रिएट किया। अब डेटा कैसे क्रिएट किया, वो हमने जस्ट स्टैटिस्टिकल हमारे पास जो है मैक्स निकाला, उसका विंडो बना के मिन निकाला, मीन निकाला। इस तरह हमने तकरीबन हमारे पास 9 पैरामीटर्स हैं, वो हमने इसके एक्सट्रैक्ट कर लिए, और फिर हमने इसके ऊपर एनालिसिस किया है। इसके अंदर हमारे पास एक टारगेट क्लास है, उसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि फॉल्ट है या नहीं है। तो 9 फीचर्स हैं इस डेटा सेट के अंदर, जो कि हमने 80-20 पे स्प्लिट किया है, और मिन मैक्स स्केलर हमने अप्लाई किया ताकि नॉर्मलाइज कर सकें उसे। फिर हम आते हैं इसकी, फिर हमें पहले इस्टेब्लिश करनी होती है बेस लाइन। बेस लाइन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बनाया। इनपुट पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 9 फीचर है, अच्छा ये 9 फीचर्स के 9 फीचर्स रेलिवेंट हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इरेलीवेंट हो मैं उसे ड्रॉप करूं, ऐसा नहीं, सारे रेलिवेंट थे। क्योंकि एक वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो वेव फॉर्म के लिए सारे के सारे रेलिवेंट है। तो 9 इनपुट फीचर्स हैं। देन मेरे पास एक फुली कनेक्टेड लेयर है, और ये 64 है, इसकी 64 by 64। देन हमारे पास हिडन लेयर पे हमने यूज़ किया रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। देन ड्रॉप आउट यूज़ किया है। ड्रॉप आउट का मकसद यही है कि ओवर फिटिंग से रोकना, कि वो मॉडल उसे याद ना कर ले, रिमेंबर ना कर लेना, तो ओवर फिटिंग के लिए हमने ड्रॉप आउट यूज़ किया। देन अगेन हमारे पास है फुली कनेक्टेड लेयर, देन फिर रेलू है हमारे पास, ड्रॉप आउट, एंड देन हमारे पास फाइनल जो आ रहा है आउटपुट, वो हमारे पास 10 है। उसके आउटपुट 10 क्यों आउटपुट है, क्योंकि हमारे पास फॉल्ट क्लास ही 10 है, तो इसलिए हमारे पास 10 वहाँ पे आउटपुट पे आ रहे हैं, और इसे हमने फिर मॉडल को ट्रेन किया है। ये
हम अभी नोटबुक भी देखेंगे अभी जाके कोड में। फिलहाल मैं यहाँ पे एक समरी भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस समरी के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमें ये पता है सेंट्रलाइज मॉडल सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें ऐसी लर्निंग करनी है, ऐसा मॉडल क्रिएट करना है जो कि परफॉर्मेंस तो सेंट्रलाइज मॉडल वाली दे, लेकिन उसके अंदर जो सेंट्रलाइज मॉडल के इश्यूज हैं वो ना हो, जो कि हमने भी 4 इश्यूज डिस्कस किए वो ना हो। तो लिहाजा हमारी बेस लाइन होगी, तो बेस लाइन में हमारे पास 2 बेस लाइन्स होती हैं, एक अपर बाउंड होता है, एक लोअर बाउंड होता है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या है? सेंट्रलाइज हमने कहा जो अ अ, सबसे ज़्यादा यानी जिसकी परफॉर्मेंस आप कोशिश करोगे मीट करने की, वो सेंट्रलाइज मॉडल है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रलाइज मॉडल के ऊपर जो कोडिंग वगैरह करके, ट्रेनिंग करके यहाँ पे हमने एक्यूरेसी और F1 स्कोर निकाले हैं। F1 स्कोर में हमारे पास प्रिसिशन और रिकॉल दोनों रिकॉर्ड हो गया। अब आप कहेंगे ये आप सिर्फ एक्यूरेसी और ये क्यों निकाला है यहाँ पे? बाकी पैरामीटर्स भी निकालें कि ये जो डेटा सेट है ये बैलेंस डेटा सेट है। लिहाजा इसके अंदर ये हमने 2 क्या कहेंगे, ये 2 हमने एवोल्यूशन मैट्रिक्स निकाले और देन इसके बाद हमने इसी को टेस्ट किया स्टैंड अलोन पे। जो मैंने आपसे कहा था कि लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड का मतलब ये है कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस हो जिसकी। बहुत बुरी परफॉर्मेंस कब हो सकती है? जब हर साइट का अपना एक मॉडल हो। तो उसे हम कहते हैं साइट का स्टैंड अलोन मॉडल। तो स्टैंड अलोन साइट 1 के लिए, देन साइट 2 के लिए, देन साइट 3 के लिए, देन साइट 4 के लिए। स्टैंड अलोन मॉडल में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका आपके पास ऐसे फॉल्ट भी आ रहे होते हैं जो आप पहले नहीं आए होते। फॉर एग्जांपल एक फॉल्ट है जो साइट 1 के पास आया है, लेकिन आपके पास पहली दफ़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज मॉडल में होते तो आपके पास भी आया हुआ होता, आप मॉडल के अंदर जो ट्रेन हुआ होता। तो स्टैंड अलोन की इसकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब होती है। तो हमने इन चारों के लिए फिर क्या किया, हमने इसे एवरेज कर लिया, एक मीन निकाल लिया यहाँ पे। तो 0.8065 जो है ये मीन है और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.0221, यानी कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास एक बेसलाइन हमने इस्टेब्लिश कर दी। अब हम आगे चलते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर कि आगे हम क्या करेंगे। आगे हम ये करेंगे कि हमें पार्टीशनिंग हमने की इसमें, डिरिचलेट पार्टीशनिंग हमने अडॉप्ट की। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास एक बेयरिंग का डेटा है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो कम से कम मल्टीपल साइट्स का डेटा रेप्लिकेट करना है ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मल्टीपल साइट्स का डेटा लेके आऊँ, या दूसरा मेरे पास ऑप्शन है मैं इसी के अंदर पार्टीशनिंग करके इसी को रेप्लिकेट करूँ कि भाई ये मेरे पास मल्टीपल साइट्स का डेटा है। तो मैंने यहाँ पे डिरिचलेट पार्टीशनिंग करके इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करी कि मेरे पास मल्टीपल साइट्स का डेटा है। अब इससे मैं जो कर रहा हूँ, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई पीछे, कि जो सेंट्रलाइज़ मॉडल है, स्टैंड अलोन मॉडल है, इसके अंदर बेसिकली ये हुआ होमोजेनियस डेटा। होमोजेनियस मतलब एक जैसा डेटा है इसके अंदर। स्टैंड अलोन के अंदर जो होगा एक साइड का डेटा, स्टैंड अलोन 2 के अंदर एक साइड का डेटा, स्टैंड अलोन 3 के अंदर तीसरी साइड का डेटा, एक जैसा डेटा है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, रियल वर्ल्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ का सेम डेटा हो, सेम सैंपल्स आ रहे हों, या सेम एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। तो ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इस पार्टीशनिंग का मकसद है कि हमें नॉन आईआईटी को एक तरह से रेप्लिकेट करना है उस एनवायरनमेंट को। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, ये अल्फ़ा यूज़ होता है। ये बेसिकली कंट्रोल करता है, ये नॉन आईआईटी बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए अल्फ़ा हम इसे कहते हैं। तो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा उतना कम हेटेरोजेनियस डेटा होगा, यानी उतना ज़्यादा होमोजेनियस डेटा होगा। तो अगर आप देखें स्मॉल, यानी हमारे पास 0.1 की वैल्यू पे एक्सट्रीम हेटेरोजेनियस डेटा आएगा और 1 के ऊपर बहुत होमोजेनियस डेटा हो जाएगा। तो अगर हम नीचे समरी देखें, इसमें ज़्यादा हमें बेहतर आएगा समझ कि क्लाइंट साइज़ के अगर आप कॉलम में देखें, यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हर क्लाइंट में। 4 वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ? 4 क्लाइंट हमने बना दिए यहाँ पे। 0.1 में भी, 0.5 में भी, 0 और 1.0 में भी। इस नंबर का मतलब क्या हुआ? इस नंबर का मतलब है कि ये इतने सैंपल्स हैं डेटा के। एक एक इंडस्ट्री ने 457 सैंपल दिए, दूसरे ने 310 दिए, इक्वल नहीं है। 681 दिए एक ने 392 दिए। तो वो हर एक, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में रियल वर्ल्ड में हम देखेंगे तो वो कभी भी इक्वल डेटा सेट नहीं देगा, कभी भी इक्वल सैंपल्स नहीं देगा। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आप देखेंगे एब्सेंट क्लास काउंट पर क्लाइंट। इस कॉलम में अगर आप देखें
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कितनी क्लासेस थी, 10 क्लासेस थी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि कितनी क्लासेस एब्सेंट हैं। यहाँ पे हम क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर अनसीन डेटा आ जाए हमारे पास, तो फिर क्या होगा? ज़रूरी तो नहीं कि मेरे पास सारे फॉल्ट मुझे पता हो, मेरी इंडस्ट्री को पता हो। तो अगर आप देखेंगे सबसे आखिरी वाले में 1.0 में, तो यहाँ पे क्लास 0 जैसे ये हमारे पास ये क्लासेस हैं, क्लास नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये 3 क्लासेस हैं, इनके 0 सैंपल्स आए हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास शो हो रही है। तो हमने नॉन हेटेरोजेनस को एक तरह से यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है इसके थ्रू, पार्टीशनिंग के थ्रू। और जब हमने इसके थ्रू एनालिसिस किया, हमने अपना मॉडल रन किया, तो हम इस टेबल में देखते हैं समरी। तो सेंट्रलाइज मॉडल में हमने देखा कि हमारे पास F1 स्कोर है 0.9, वो तो हमारा पहले हमने देख लिया था। और स्टैंड अलोन में क्या था, हमारा लोअर बाउंड ये है 0.8। तो अगर हमारे पास नॉन IID डेटा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो, तो F1 स्कोर जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाएगा। आप देखें 0.9 से ड्रॉप होकर 0.58 हो गया। और इसी तरह अगर हमारे पास 0.5 होता है, मॉडरेट हम नॉन IID लेते हैं, जो कि असल में इंडस्ट्री में भी यही है, मॉडरेट ही होता है, 0.87 है। और माइल्ड के ऊपर 0.9। माइल्ड का मतलब है कि बेस्ट केस सिनेरियो है, होमोजीनियस डेटा है, और एक्सट्रीम का मतलब है बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इंडस्ट्री के अंदर हम जो फॉलो करते हैं बेसिकली वो 0.5 के आसपास ही हम देख रहे होते हैं। तो 0.87 का हम नंबर लेके चलेंगे। 0.87 का मतलब आप ये कहेंगे कि 0.9 से ड्रॉप होकर 0.87 हो गया। हाँ, बिल्कुल ड्रॉप हुआ, ये बात सही है, लेकिन 0.9 जो है वो होमोजीनियस डेटा है, वो सेंट्रलाइज मॉडल है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेड ऑफ होगा आपका। तो ट्रेड ऑफ यही है कि आपकी कुछ ना कुछ इसमें एक्यूरेसी कम होगी, F1 स्कोर कम होगा आपका, लेकिन आपका मॉडल जो है वो नॉन IID डेटा को भी प्रोसेस कर सकेगा। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हम आते हैं सेकंड, जो कि हमारा प्रॉब्लम थी, वो था मैलिशियस डेटा, जो कि अगर कोई क्लाइंट हो जाए, मैलिशियस हो जाए, या फिर उसके अंदर कोई करप्ट डेटा आगे मॉडल को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दे। तो इसके लिए हमने ये किया कि अगर हम बात करें सिंपल, तो हम लोग जैसे हमने बात की थी सेंट्रल मॉडल पे फेड एवरेज करते हैं। फेड एवरेज का मतलब ये है कि हम वेटेड एवरेज ले लेते हैं। मॉडल 1 ने वेट्स भेजे, मॉडल 2 ने फैक्ट्री 1 ने भेजे, फैक्ट्री 2 ने भेजे, फैक्ट्री 3 ने भेजे। वो वेट्स वहाँ पे गए, सेंट्रल मॉडल पे हमने बना के उसे एवरेज कर लिया, वेटेड एवरेज। लेकिन हम वेटेड एवरेज एक सही चीज़ नहीं है। वेटेड एवरेज क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट 1 भेज रहा है 1 वेट, क्लाइंट 2 ने भेजा 2, लेकिन क्लाइंट 3 पे अटैक हो गया, उसने भेज दिया बहुत ही बड़ा नंबर 100 भेज दिया। अगर एवरेज करेंगे तो आपका एवरेज जो होना चाहिए था 2-3 के आसपास, वो आपका पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका पूरा मॉडल ही कोलैप्स हो जाएगा। तो लिहाजा फेड एवरेज हम नहीं कर सकते, हमें इसके अलावा कोई टेक्निक देखनी है। तो हमारे पास 2 मज़ीद टेक्निक्स हैं जो कि हमने एक्सप्लोर की हैं स्टडी में। एक है ट्रिम्ड मीन और एक है क्रम। तो होता क्या है इसके अंदर, कि हमने इस तरह से किया कि हमारे पास टोटल 4 क्लाइंट थे, उसमें से हमने कहा कि एक अगर एडवर्सरल हो जाए, उस सूरत में क्या होगा हमारा, उस सूरत में हम रिजल्ट, अच्छा इसमें हम जो अटैक हैं, अटैक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने जो फिलहाल इसमें देखा है अटैक जो हमने इम्प्लीमेंट किया, वो है साइन फ्लिपिंग। साइन फ्लिपिंग का मतलब ये है कि वेट जो भेज रहा है वो ऑपोजिट साइन हो जाएगा उसका, यानी कि नेगेटिव ऑफ वेट्स जाएंगे मेन मॉडल के पास। अगर 5 जाना था वो जाएगा -5, या -5 जाना था वो जाएगा 5। तो नेगेटिव ऑफ वेट हम भेज रहे हैं, तो ये साइन फ्लिपिंग अटैक होता है बेसिकली। इसके अलावा भी और अटैक्स होते हैं, ग्रेडियंट पॉइजनिंग होता है, और मॉडल रिप्लेसमेंट वगैरह होता है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे आगे उसमें। ओके, तो ये समरी इसमें ये सजेस्ट करती है कि अगर नॉर्मल हमारे पास मॉडल हो फेड एवरेज का, और फेड एवरेज करें FL के ऊपर हम, तो हमारा F1 स्कोर 0.87 आएगा। लेकिन अगर इसी मॉडल पे, सादे मॉडल के ऊपर अटैक हो जाए, तो ये कोलैप्स हो जाएगा। क्यों कोलैप्स होगा? 0.0182 हो जाएगा इसकी F1 स्कोर। तो ये मॉडल ही कोलैप्स हो गया। वो मैंने आपको बताया कि अगर एवरेज करेंगे तो वो एवरेज बहुत ही डेविएट कर जाएगा किसी एक्सट्रीम साइड पे।
तो हम जो इसमें दो चीज़ हमने देखी, इसमें क्रम देखा, एक ट्रिम मीन देखा। हमने एवरेज नहीं करेंगे, हम क्रम करेंगे या ट्रिम मीन करेंगे, और फिर उसके बाद हमने अटैक किया। तो उस सूरत में आपका जो नंबर है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया। इसमें 0.45 है और ट्रिम्ड मीन में 0.78 है। अब सवाल होता है क्रम क्या है, ट्रिम्ड मीन क्या है? पहले हम ट्रिम्ड मीन को देख लेते हैं। ट्रिम मीन में ये होता है कि जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, यानी वो उसे सॉर्ट करेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू होगी, यानी कि जो नेगेटिव साइड पे, लोअर साइड पे एक्सट्रीम वैल्यू है, जो पॉजिटिव साइड पे एक्सट्रीम वैल्यू हायर साइड पे, उन सबको हटा के जो बचेंगी वैल्यू उन सबका एवरेज कर लेगा। ट्रिम मीन सिंपल ये करता है, जैसे नाम से भी जाएगा कि ट्रिम किया इसने और उसे मीन कर लिया। ट्रिम किसे किया? एक्सट्रीम साइड पे। तो यहाँ पे ट्रिम मीन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है हमारे केस में। क्रम क्या करता है? क्रम ये करता है कि हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम देखते हैं, हमारे पास चार अदद वेट्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक वेट है, ये आउटलायर है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक, क्या पता अटैक हुआ है, एडवर्सरियल अटैक है ये। तो बेसिकली ये करता है, ये डिस्टेंस बेस के ऊपर काम करता है। ये करेगा कि क्लाइंट ए अपना डिस्टेंस निकालेगा बाकी सबसे, क्लाइंट बी भी निकालेगा, क्लाइंट सी निकालेगा। इसके बाद देखिएगा सबसे करीब किसके साथ है डिस्टेंस। तो ए के लिए क्लोजेस्ट कौन है? बी, क्योंकि इसका क्या डिस्टेंस है? 1। इस तरह बी के लिए कौन क्लोजेस्ट है? ए या सी? ए है और ये सी है, 1 1। इस तरह सी के लिए कौन है? ये क्लोजेस्ट है। तो ये सारे क्लोजेस्ट आ गए। तो वो ये करता है कि वो सारे ना एवरेज करेगा ना कुछ और करेगा, वो ये करेगा इनमें से जो सबसे नियरेस्ट होगा ना इसके, उसे वो कंसिडर कर लेगा। तो उसने सबसे नियरेस्ट जो था, क्या था? ए बी है, बी बी है, सी बी है, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए वो इन तीनों में किसी एक को कंसिडर करके आपका जो वेट है, ग्लोबल वेट, वो असाइन कर देगा इनमें से किसी एक के वेट का। या अगर फॉर एग्जांपल तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होती है, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, तो ये 1 वाली वैल्यू को कंसिडर करता और ए का वेट असाइन कर देता ग्लोबल को। तो हमारे केस के अंदर क्या हुआ कि हमने क्रम भी देखा, हमने ट्रिम भी देखा, तो हमारे हमारे केस में ट्रिम्ड मीन ज्यादा बेहतर रहा है। देन इसके बाद हम आते हैं DPSGD, डिफरेंशियल प्राइवेसी के ऊपर। ये डिफरेंशियल प्राइवेसी के अंदर वही मसला था कि हम वेट्स तो शेयर कर रहे हैं, और अगर वेट्स के थ्रू वो हमारे डेटा को एक्सेस कर लें तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसमें ये बात आती है हमारे पास एक, हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जितना आप डेटा शेयर करोगे उतना आपकी प्राइवेसी कम होगी, जितना आप कम डेटा शेयर करोगे उतनी आपकी प्राइवेसी ज़्यादा होगी। ये एक ट्रेड ऑफ है। ये डिपेंड करता है फिर इंडस्ट्री के ऊपर या यूज केस के ऊपर कि वो अपना कितना किस हद तक डेटा शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो डिफरेंशियल प्राइवेसी विद स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये यूज कर रहे हैं हम मेथड ना। इसके अंदर हमारे पास एक एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, काफ़ी मुश्किल सा फॉर्मूला है वो। तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, बेसिकली वो कंट्रोल करती है प्राइवेसी बजट को, कि यानी कितनी प्राइवेसी आप अलाउ कर रहे हैं। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, वेट्स के अंदर नॉइज ऐड करते हैं, नॉइज ऐड करते हैं, और डेटा का वेट जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहता, नॉइज ऐड हो जाती है उसके अंदर। तो जब हमने अपने केस में देखा, हमने इन 5 केसेस के ऊपर इसे टेस्ट किया, एप्सिलॉन 1 से लेके 50 तक। तो ये F1 स्कोर है, ये एक्यूरेसी है। तो आप इसके अंदर देखें, सबसे बेहतर हमारे लिए रहा है 5 के ऊपर, प्राइवेसी यूटिलिटी ट्रेड ऑफ के अंदर। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास नोट करने की है, वो नोट करने का ये है पॉइंट कि हमारा F1 स्कोर या एक्यूरेसी जो कुछ भी है, ये हमारे पास ड्रॉप हो गई, जो कि हमारे पास कितनी थी? 0.87 थी। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमें कोई ना कोई ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो ट्रेड ऑफ यही है कि आप जितना कम डेटा शेयर करोगे तो आपकी प्राइवेसी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसमें फिर ये आपको एक करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री फिर अगर कुछ होती है वो कहती हैं हम पूरा डेटा शेयर कर लेते हैं, मसला नहीं है, इतना हमारा सेंसिटिव डेटा नहीं है। लेकिन कुछ मना भी करते हैं तो फिर उन्हें उस बात पे फिर वो कर लेते हैं ट्रेड ऑफ, एग्री होते हैं वो। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं FEAM, फेडरेटेड एक्सप्लेनेबिलिटी अलाइनमेंट मैकेनिज्म। ये हमारे जो थीसिस है, ये इसका एक तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर ये है कि जैसे मैं इस एग्जांपल से समझाऊं कि क्लाइंट ए था, इसमें यह है कि एक्सप्लेनेशन जो आ रही है वो सब क्लाइंट की कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो अब क्लाइंट ए की एक्सप्लेनेशन जो है वो कह रही है कि पैरामीटर ए है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, यहाँ पे कह रहा है क्लाइंट बी नहीं, मेरा मेरा पैरामीटर डी है वो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो ग्लोबल मॉडल क्या करेगा? ग्लोबल मॉडल तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जो प्रपोज किया है वो है FEAM है।
और यहाँ पे एक्सप्लेनेबिलिटी बेसिकली हम निकालने हैं इसमें शेप के ज़रिए। तो मॉडल क्या करेगा इसमें कि हमारे पास क्लाइंट लेवल पे शेप कंप्यूट हुआ, देन वो एग्रीगेट हुआ, एग्रीगेट होके एक हमारे पास शेप रेफरेंस वहाँ से क्रिएट होगा, वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट होके वो हर मॉडल के पास आ जाएगा, इंडिविजुअल मॉडल के पास। यहाँ से हम लॉस निकालेंगे। एल क्लासिफिकेशन एक क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस है यहाँ पे। देन लैम्डा है हमारे पास, लैम्डा से हम ट्रेड ऑफ कंट्रोल करते हैं कि कितनी हमें एक्सप्लेनेशन रखनी है, यानी कि हमें ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना है, कम कंसिस्टेंट रखना है। शेप लोकल बेसिकली मॉडल का है, हर फैक्ट्री का। शेप रेफरेंस ग्लोबल मॉडल का है। यहाँ से हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफ़ी इसके अंदर कन्वर्ज होगा। जब कन्वर्ज हो जाएगा सेवरल राउंड के बाद, तो शेप तीनों का कंसिस्टेंट हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम कैलकुलेट करेंगे ईडीआई, एक्सप्लेनेशन डाइवर्जेंस इंडेक्स। एक्सप्लेनेशन डाइवर्जेंस इंडेक्स बेसिकली यही बताता है कि कितनी एक्सप्लेनेशन आपस में कंसिस्टेंट हैं और कितना इनमें कितनी दूर दूर है, ये चीज़ हमें बताए। तो जीरो का मतलब ये है कि कोई डाइवर्जेंस ही नहीं है, बहुत परफेक्ट है, रियल वर्ल्ड केस है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, आइडियल केस है ये। और ईटीआई लार्ज है 0.05। 0.05 कहाँ से आया? 0.05 इस तरह आया कि मैंने जब मॉडल को ट्रेन किया सिंपल, तो उसका ईटीआई था 0.05। तो अगर मैं FEAM अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट तो ये है कि मुझे 0.05 से कम जाना है। तो 0.05 से कम आने के लिए मैंने टारगेट एक तरह से बनाया कि 0.03 होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। ये एक ग्राफ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि वनीला फेड एवरेज बेसिकली, वनीला यानी बिल्कुल जो नॉर्मल है FL, और FEAM जो हमारा प्रपोज मैकेनिज्म है, उसकी परफॉर्मेंस तकरीबन सेम है। लेकिन इसका ईडीआई में बहुत फर्क है। हमारा FEAM का ईडीआई, एक्सप्लेनेशन डाइवर्जेंस इंडेक्स, काफ़ी कम है एज कम्पेयर्ड विथ वनीला फेड एवरेज का। तो ये हो गया। इसके बाद हम लास्ट एक है पार्ट, वो है हमारा पर्सनलाइज फेडरेटेड लर्निंग का। पर्सनलाइज फेडरेटेड लर्निंग के अंदर यही है कि हमने जैसे डिस्कस किया कि हीटरोजीनियस डेटा है हमारा, डिफरेंट कंडीशंस में मशीन ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो मॉडल हमारा बने वो फेडरेटेड लर्निंग पर्सनल हो, पर्सनल बेसिस पे हो। इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, वो दोनों यहाँ मेंशन है। अब हम इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या टेक्निक्स हैं। पहली है पर्सनलाइज फेडरेटेड लर्निंग विद मोरियो एनवेलप्स। इसमें क्या होता है, इसे मैं लेमैन टर्म में अगर समझाऊं कि जस्ट लाइक अ रबर बैंड है, एक तरफ इसका लोकल मॉडल है, एक तरफ इसका ग्लोबल मॉडल है, तो ये कोशिश करेगा दोनों को बैलेंस करके चले। और जो सेकंड टेक्निक होती है हमारे पास, वो होती है फेडरेटेड पर्सनलाइजेशन की, फेड पर। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो मॉडल होता है उसे ब्रेक करते हैं एक शेयर्ड लेयर में और पर्सनलाइज लेयर में। शेयर्ड लेयर क्या करेगी? शेयर्ड लेयर करेगी शेयर्ड फीचर्स लर्न करेगी, लेकिन पर्सनलाइज लेयर क्या करेगी? वो पर्सनल जो फैक्ट्री वाइज फीचर्स हैं वो लर्न करेगी। तो इस तरह ये मॉडल एक अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो अगर मैं थोड़ा समरी बनाऊं इसकी, समराइज करूं, तो समराइज ये है कि नॉन IIT के लिए हमने क्या किया? पर्सनलाइजेशन हमने की इसके लिए, ये जैसे हमने भी डिस्कस किया। अटैक्स के लिए हमने क्रम और ट्रिम्ड मीन देखा। इनकंसिस्टेंट शेप के लिए हमने FEAM मैकेनिज्म एक ड्राइव किया। और प्राइवेसी के लिए हमने DPSGD देखा। फिलहाल हम जो डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं वो CWRU बियरिंग का है, और इसके ऊपर सारे कुछ अभी स्टेप्स हैं वो थीसिस 2 के लिए अभी पेंडिंग है, वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा टारगेट ये है कि दो मजीद डेटा सेट्स के ऊपर केस स्टडी करनी है। दो मजीद डेटा सेट लेने की वजह यह है कि CWRU एक तरह का वाइब्रेशन डेटा सेट है, यानी आपके पास फीचर्स उस तरह से आ नहीं रहे होते, आपके पास वाइब्रेशन से आप खुद डेटा सेट के फीचर्स बनाते हो। बाकी के अंदर ये है कि ये हाइड्रोलिक डेटा सेट है, मैकेनिकल में बहुत यूज़ होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरह के पैरामीटर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस वजह से हम हाइड्रोलिक डेटा सेट के ऊपर, और AI4I 2020, ये सारे बेसलाइन डेटा सेट्स हैं, इनके ऊपर हम वर्किंग करेंगे और अपने केस को, अपने स्टडी को फिर वैलिडेट करेंगे। ये थी मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन। इसके अंदर अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, चैट में भी आप लिख सकते हैं। मीनवाइल बिलाल, आप इनको अपनी नोटबुक दिखा दीजिए। जी सर। ओके, होपफुली विजिबल होगी मेरी स्क्रीन। तो फर्स्ट हमारा जो है डेटा सेट CWRB पे हमने काम किया और सबसे पहले हमने जस्ट EDA परफॉर्म किया है। यहाँ पे EDA परफॉर्म किया है, क्लासेस इसमें बैलेंस थी बेसिकली। तो EDA होने के बाद देन हमने प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट की है। 10 फॉल्ट क्लासेस थी हमारी और इसमें मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमने इसका कोरिलेशन चेक किया है और देन जैसे मैंने बताया था हमने सेंट्रलाइज मॉडल ट्रेन किया, तो सेंट्रलाइज मॉडल ट्रेनिंग हमारे पास यहाँ पे हुई भी है। एक अपर बाउंड निकाला, एक लोअर बाउंड निकाला हमने और जस्ट एवरेज किया है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट हम देखें, दीज आर द रिजल्ट्स। इसमें स्टैंड अलोन बेस लाइन के अंदर 4 हमारे पास क्लाइंट्स थे। स्टैंड अलोन हमने चारों का यहाँ पे निकाला, ये एवरेज हुआ है। देन ये समराइज रिजल्ट है हमारे बेस लाइन समरी CWRU10 क्लास। और ये प्रेजेंटेशन भी हमने देखी थी अभी, 0.91 एक्यूरेसी थी सेंट्रलाइज की। स्टैंड अलोन की ड्रॉप हो जाती है क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन मॉडल होता है। देन इसके बाद ये पार्टीशनिंग हुई हुई है, रिलेटेड पार्टीशनिंग। इसमें भी रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। अल्फा जैसे हमने बताया कि कंट्रोल करता है कितना हिटरोजीनस डेटा होना चाहिए। तो ये सैंपल्स हैं हमारे 457 हर क्लाइंट के, हर फैक्ट्री के। ओके, ये एक विजुअल मैप है। विजुअल मैप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ जगह आपको डार्क दिख रहा होगा। डार्क डार्क इसका मतलब ये है कि कुछ क्लासेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। 0.1 के अंदर 180 का मतलब 180 सैंपल्स हैं यहाँ पे क्लास 9 के, बाकी जगह बहुत कम सैंपल्स हैं। और इस तरह 0.5 का भी हमने देखा था, 1.0 का भी हमने देखा था। ये ज़्यादा बैलेंस होता है 1.0, लेकिन ये हम 1.0 यूज़ नहीं करते कि इंडस्ट्री में इस तरह का यूज़ नहीं होता सिस्टम। हम 0.5 का हमने यूज़ किया था। इसमें आप देखेंगे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ जगह पे 0 हमें दिखेगा, वो बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे हमें रहने चाहिए फॉल्ट जो कि अनसीन हो। ओके, देन ये वही ग्राफ है। देन फेड एवरेज हमने बनाया यहाँ पे, बेस लाइन एवरेज के लिए हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने कहा था एवरेज सही नहीं है क्योंकि अटैक की सूरत में वो डेविएट कर जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे राउंड वाइज हमने चलाया इसे, 150 राउंड तक हमने चलाया है। फिर ये कन्वर्जेंस हुई है, यहाँ पे कन्वर्ज हो गया आके। और ये हमने देखा भी था कन्वर्जेंस का अल्फा। देन ये हमने यहाँ पे अटैक्स का इम्प्लीमेंट किया है कि अगर अटैक ना हो तो हमारे पास क्या रहती है, F1 स्कोर एक्यूरेसी। जैसे जैसे अटैक होता जाता है, और साइंस पेपर हमने अटैक किया इसमें। बाकी हम मजीद अटैक्स भी इसमें आगे इम्प्लीमेंट करेंगे थीसिस 2 के अंदर। तो क्रम हमने किया, क्रम के अंदर हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं, और ट्रिम्ड मीन हमने किया, उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं। ये इसी का हमने प्लॉट भी कर दिया था। और देन ये प्राइवेसी DPSGD हमने जो देखा है वो ग्रेडियंट डिसेंट स्टोकेस्टिक। तो उसके अंदर भी हमने देखा कि हम जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते हैं तो प्राइवेसी यूटिलिटी का क्या ट्रेड ऑफ होता है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर था एप्सिलॉन 5। और इसके बाद हम फाइनल एक समरी नीचे देख लेते हैं, उसमें समराइज हुआ हुआ है सारा। वो समरी हमारे पास ये है। सेंट्रलाइज मॉडल हमने देखा 0.91 है,
स्टैंड अलोन हमने 0.80 देखा, तो हमें परफॉर्मेंस इसके बीच में रखनी है। फेड एवरेज डिफरेंट अल्फा के ऊपर नॉन हिटोजेनिटी हमने यहाँ पे केटर की। देन हमने 0.5 वाला मॉडल को पिक किया था कि ये इंडस्ट्री में यही ज़्यादा यूज़ होता है। देन इसके बाद हमने इसमें अटैक्स का हमने देखा कि अगर एक क्लाइंट मैलिशियस हो जाए तो क्या होगा। देन ये प्राइवेसी यूटिलिटी कर्व है, और इसके बाद हमारा FEAM को हमने नीचे इम्प्लीमेंट किया है इस पूरे के अंदर। ये FEAM इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई सवाल हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल था कि अभी आपने जिस डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया है, जी सर। तो आपने लोकल इंडस्ट्री से भी कोई डेटा सेट लिए हैं? नहीं सर, लोकल इंडस्ट्री के अंदर इशू ये है कि प्राइवेसी की वजह से डेटा सेट शेयर नहीं करना चाहते वो थीसिस वगैरह के लिए, क्योंकि ये पब्लिश होते हैं। तो मैंने बात की हुई है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी में, कि अगर वो शेयर कर दें कुछ डेटा सेट में अप्रूवल है, तो अगर वो कर देंगे तो मैं बिल्कुल यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारा प्लान तो यही है कि हम आगे से यूज़ करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। हाँ, इसके लिए आप काइंडली कुछ प्रेपरेशन कर लें। अगर कोई कंसर्न चाहिए या लेटर हेड पे कोई परमिशन चाहिए होगी तो वो हम आपको फास्ट न्यूज़ से दिलवा देंगे। ठीक है सर। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस बारे में। जी, जी, इसको प्रायोरिटी पे करें क्योंकि हमें एक्चुअली इसको लोकलाइज़ ही करना है ना, इसको हमें जी अपनी जी। इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना है। तो बाकी जो डेटा सेट आपको मिल रहे हैं वो बाहर के हैं, जी। तो दैट्स गुड फॉर ट्रेनिंग। उसके अलावा आप जो हैं वो कोशिश करें कि यहाँ की इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन इसका हो जाए, ताकि हम जो है वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के हवाले से लोकल इंडस्ट्री में काम कर सकें। ठीक है सर, बिल्कुल। एंड ऑडियंस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, और सून इंशाल्लाह आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से रिलेटेड फर्दर सेशन भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।